سورۃ الجمعہ آیات نمبر 11۔ پچھلے جمعہ کو میرے دوستوں جو درس چل رہے تھے، آخری آیات فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سورۃ الجمعہ آیات نمبر 11۔ پچھلے جمعہ کو میرے دوستوں جو درس چل رہے تھے، آخری آیات فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ میرے محترم دوستوں، جب نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ زمین میں پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ بازار میں جا کر اپنا کام کاج شروع کر دو، اللہ کی فضل سے رزق طلب کرو، رزق کی تلاش کرو۔ رزق کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص بازار میں جا کر یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائیں گے اور 1,00,000 اس کی غلطیاں معاف فرمائیں گے اور 1,00,000 درجات اس کو رب العزت بلند فرمائیں گے۔ میرے دوستوں، وہ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمات پڑھنے سے اللہ رب العزت 1,00,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور 1,00,000 غلطیاں اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں اور 1,00,000 درجات اللہ رب العزت اس کو بلند فرماتے ہیں، اس کی درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اب میرے دوستوں، نماز ختم کرنے کے بعد اللہ نے فرما دی جاؤ اپنے اپنے ڈیوٹی پر چلے جاؤ۔ جو سرکاری ملازمین ہے وہ اپنے ہی کام پر لگ جائے، جو مزدور ہے اپنے مزدوری پر لگ جائے، جو بازاروں میں تجارت کرنے والے ہیں، کام کاج کرنے والے، وہ بازاروں میں چلے جائیں، وہ اپنا کام کاج شروع کرے، اس سے یہ اجازت ہے۔ وہ جمعہ کی نماز کی بات جب نماز مکمل کر لی تو پھر اس کے لیے اجازت ہے وہ اپنا کام کاج شروع کر دے۔ لیکن میرے دوستوں، یہودیوں کی یہاں یہ دستور تھا کہ ہفتے والے دن وہ صرف اور صرف عبادت کے علاوہ باقی کوئی بھی کام نہیں کر سکتے تھے، نہ اپنا رزق کے لیے کام کاج کر سکتے تھے، نہ بازاروں میں جانے کی ان کی اجازت تھی، بلکہ وہ پورا دین عبادت میں مشغول رہتے تھے
اور بلکہ ان کی چولہے بھی ٹھنڈے رہتے ہیں، یہ اپنے چولہا بھی نہیں جلاتے تھے۔ تو میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ایک آسانی پیدا فرما دی کہ جمعہ کے بعد جب جمعہ سے تم فارغ ہو، فارغ کر وہ اپنے کام پر جا سکتے ہیں۔ جمعہ کی اذان سے لے کر نماز ختم ہونے تک کاروبار بند رکھنے کا حکم ہے۔ جمعہ کی اذان سے لے کر نماز ختم ہونے تک کاروبار بند رکھنے کی اجازت ہے۔ تو اس سے مطلب ہے جمعہ کے پہلے بھی کاروبار کر سکتے ہیں، جمعہ کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائے اس کی بعد بھی کام کاج کر سکتے ہیں، وہ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ ہاں، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اپنا کاروبار بند کر دیں، فوراً نماز کی تیاری کر لی جائے، اپنے کپڑے وغیرہ پہن لیں، غسل کر لیں، عطر خوشبو وغیرہ لگا کر نماز جمعہ کی تیاری کر لی جائے۔ کہ اللہ نے فرمایا کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ زمین میں پھیل جائیں، اللہ کی فضل سے تلاش کرتے رہے، روزی تلاش کرتے رہو۔ اب میرے دوستوں، اسی طریقے سے رزق حلال کی فضل، رزق حلال تلاش کرنا یہ اللہ کی فضل میں سے ہے۔ اسی طریقے سے نماز جمعہ میں اجتماع ہوتی ہیں جمعہ والے دن، تو علماء اور مشائخ کے پاس جا کے اپنا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بیماری کی بیمار پرسی کر سکتے ہیں، نماز جنازہ پڑھنا، مومنوں سے ملاقات کرنا، علم حاصل کرنا، یہ سب اللہ کی فضل میں شامل ہے۔ سارے کے سارے چیزیں یہ اللہ کی فضل میں داخل ہے۔ اب جمعہ کی نماز اور جمعہ کے دن اجتماعی اصول میں سے ایک اہم اصول یہ ہے، جب لوگوں کا اجتماع ہو تو پھر مسلمانوں کو عام مفاد یعنی تبلیغ، تنظیم اور جہاد کی بات چیت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ید اللہ علی الجماع، کہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا دست شفقت ہوتا ہے، جماعت پر اللہ کا دست شفقت ہوتا ہے، یعنی باہمی مشورے سے کام کرنے میں بڑی برکات ہوتی ہے۔ کہ جمعہ والے دن علماء مشائخ کے پاس جا کر بیٹھنا، علم حاصل کرنا اور علماء سے استفادہ حاصل کرنا، پھر نماز جمعہ میں شرکت کر کے تنظیم اور تعلیم، تبلیغ اور اس کی بعد جہاد کی باتیں سننا، تو فرمایا یہ جماعت ہے۔ جماعت کے اوپر اللہ رب العزت کی دست شفقت حاصل ہوتا ہے، یعنی باہمی مشورے سے کام کرنے میں بڑی برکت ہے۔ اور یہ موقع جمعہ کا اجتماع بخوبی مہیا کرتے ہیں جمعہ والے دن، لہذا سارے کام کاج چھوڑ کر اجتماع میں حاضر ہونا انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے، مومن مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تمام تر کام کاج چھوڑ کر جمعہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عراق ابن مالک نماز پڑھ کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم احببت دعوتک وصلیت فریضتک وانشرت کما امرتنی وارزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین۔ حضرت عراق ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم حببت دعوتک، اے اللہ میں تیری دعوات کو قبول کیا، وصلیت فریضتک، اور میں نے تیرے فرض نماز کو ادا کیا، وانشرت کما امرتنی، اور پھر میں منتشر ہوتا ہوں، میں تیرے حکم سے منتشر ہو جاتا ہوں، یعنی رزق کی نیت سے زمین کے اندر پھیل جاتا ہوں، یعنی مسجد کے دروازہ میں کھڑا ہو کر میں نکل رہا ہوں روزی کے لیے۔ فرمایا کہ وانتشرت کما امرتنی، جیسے تو نے حکم فرمایا کہ میں نے نماز پڑھ کر زمین میں پھیل جاتا ہوں، وارزقنی من فضلک، اور تو مجھے رزق عطا فرما تیرے فضل سے، وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔
یہ حضرت इराद इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज जुमा पढ़कर दरवाजे पे खड़े होकर ये दुआ पढ़ा करते थे। अब मेरे दोस्तों, अल्लाह ने आगे फरमाया, फैजा कुदियति सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह की फजल यानी रोजी की तलाश करने के लिए अल्लाह की फजल से तलाश करते रहो। आगे बढ़ो, वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम, और अल्लाह की जिक्र करते रहो खूब कसरत से। अब ये बात यहां ये आते कि भाई जिक्र का तो कोई हद नहीं है, जबानी जिक्र की जाए, जिक्र का कोई हद नहीं है, जितना भी जिक्र करो, मगर जिक्र कैसे की जाए? तो फरमाया कि भाई जिक्र करने के लिए कुल मुतीइल्लाहि ज़ाकिरुन, नेकी और इताअत का काम करना, नेकी और इताअत का काम करना, अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करना, ये ही आदमी, इस आदमी को भी जाकिर कहते हैं। ताहम मेरे दोस्तों, ज़बानी जिक्र करना अल्लाह के नजदीक तमाम कलमात से सबसे ज्यादा पसंदीदा ये है तीसरा कलमा, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा जिक्र में से है। फिर फरमाया कि जिक्र कैसे की जाए मेरे दोस्तों, कि लिसानी जिक्र आहिस्ता से की जाए, चुपके से की जाए, आहिस्ता आहिस्ता हल्की आवाज से। ऐसे नहीं कि लाउड स्पीकर लगा दी तुमने बाहर की और दुरूद पढ़ते रहना कि भाई लाउड स्पीकर में खूब शोर शराबा कर ली कि भाई दुरूद तो पढ़ रहा हो ना, तो लेकिन लोगों को तकलीफ देना, लोगों को परेशान करना, यह भी गलत बात है। तो मेरे दोस्तों, खूब लाउड स्पीकर में आवाज से जिक्र करना कलमा तैयबा की। बाद जगहों में ऐसे है मेरे दोस्तों, सुबह फजर की बात अल्लाह ने तो फरमाया वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम, जिक्र करो खूब कसरत से, जिक्र का कोई हद नहीं है। अभी रात को फजर की अजान आपने पुकारे, अजान की बात शुरू हो गई, खुद तो सुन्नत पढ़ ली और सुन्नत पढ़ के खूब मेरे दोस्तों जिक्र शुरू कर दिया, और इतना तेज जिक्र करते हैं, कभी कलमा तैयबा का जिक्र कर रहे हैं, बेशक अल्लाह की जिक्र कर रहे हैं, बेशक मेरे दोस्तों, फिर शराबा शुरू कर देते कि भाई नमाज की वक्त होने वाली है, नमाज नींद से बेहतर है। भाई ये सारे दावाते तुम पहुंचा तो रहे हो, लेकिन तुम्हारे ये शराबा की वजह से सुन्नत पढ़ने वाले सुन्नत नहीं पढ़ सकते हैं, कुरान मजीद तलावत करने वाले तो कुरान मजीद तलावत नहीं कर सकते हैं। आप तकरीबन 5, साढ़े 5 बजे अजान देते हो, 5:35, 40 पे अजान देते हो, और 6:15 बजे, 6:30 बजे जमात अदा कर रहे होती हैं आप। 6:35 पे, 6:40 पे आप जमात अदा कर रहे हैं, 6:30 बजे अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, 5:30 बजे अजान हो रहा है, 5:40 पे अजान हो रहा है, तो 1 घंटा है, 1 घंटा आप माइक के अंदर शराबा करते रहे हो और जिक्र कर रहा है, लोगों को तकलीफ देना, परेशान करना। मेरे दोस्तों, तो यह भी गुनाह अजीम है कि इजाए मुस्लिम हराम है, मुसलमानों को इज्जत देना अपने हाथ से हो, अपने जबान से हो, बेशक आप अल्लाह की जिक्र क्यों ना कर रहे हो, लेकिन इससे भी लोग परेशान हो रहे हैं। आपकी शोर शराबा की वजह से बहुत सारे मरीज है, ब्लड प्रेशर के मरीज है, हार्ट की मरीज है, जो उनकी परेशानी की बायस बन रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खामोश अपने घरों में, खवातीन और हजरात, अपने माँ और बहनें जो अपने घरों में इबादत कर रहे होती हैं, कुरान मजीद तिलावत कर रहे हैं, और वो अपने भी तस्बीह और वजीफा पे लगे हुए हैं, लेकिन आपकी लाउड स्पीकर की शोर शराबा की वजह से वो इंतहाई परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। तो सवाब की बजाय आप गुनाह कमा रहे हो, तो जिक्र करो खामोशी से, वज़्कुर रब्बका तज़र्रुअन व खुफ़िया दूनल जहर बिल क़ौल बिल गुदुव्वि वल आसाल वला तकुन मिनल गाफ़िलीन, कि भाई जिक्र करें खामोशी से, चुपके चुपके, अल्लाह की जिक्र से कभी गाफिल ना होना, हमेशा अल्लाह की जिक्र करते रहो बिगाड़ी आवाज की। आप जबानी जिक्र सबसे औला अफजल है, कुरान मजीद आप तलावत करें, अल्लाह की जिक्र करें, कलमा तैयबा का जिक्र करते रहें, लेकिन अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा कलमात में से क्या है भाई? तीसरा कलमा
सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ना। और बाद हदीसों में रवायत में यह भी है कि अफजल ज़िक्र तिलावतुल कुरान, अफजल जिक्र कुरान मजीद की तिलावत करना है। तो आप कुरान मजीद की तिलावत करते रहो, 1 पारा 1.5 पारा 2 पारा जितने भी पढ़ सकते हो पढ़ लो, कम से कम ज्यादा नहीं तो आधा सफा आधा पारा, इससे भी कम हो तो कम से कम 1 रुबा पढ़ लो, ये भी नहीं हो तो कम से कम 1 रुकू कम से कम रोजाना पढ़ लिया करो कुरान मजीद के। फिर अल्लाह ने फरमाया जिक्र कल्बी, जिक्र रूही, जिक्र कल्बी जो बुजुर्गान दीन सूफिया किराम सिखाते हैं कि अपना दिल अपने बाएं तरफ दिल है कि आप दिल के अंदर ये आहद कर ले कि आपका दिल अल्लाह 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 की जिक्र कर रहा है, आपका दिल अल्लाह की जिक्र कर रहा है। इसी तरीके से रूह, जिक्र रूह ना, अभी जिक्र कल्बी और जिक्र रूह वो भी ऐसे हैं कि भाई आप ये तसव्वुर करें, आप ये तसव्वुर करें ना थोड़ी देर के लिए मेरे दोस्तों। फिर आप जो है अपने नाक बंद करें, आंखें बंद करके ये सोच लें कि भाई मेरे दिल अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं और मेरे रूह भी अल्लाह अल्लाह कर रहा है, बल्कि मेरे पूरे जिस्म की जितनी आज़ाएं हैं तमाम आज़ाएं जो अल्लाह 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 कर रहे हैं, बल्कि मेरे पूरे जिस्म की तमाम तरबाल अल्लाह अल्लाह कर रही है। बुजुर्गान दीन सूफिया किराम यही चीज सिखाते हैं। अब अल्लाह ने आगे फरमाया लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो अल्लाह की अज़ाब से मेरे दोस्तों जब आप जिक्र करोगे, अल्लाह की जिक्र करते रहोगे, कुरान मजीद की तलावत करते रहोगे, या जिक्र कल्बी, जिक्र रोही और जिक्र लिसानी आप करते रहोगे मेरे दोस्तों, जो भी जिक्र आप करते हो, कुरान मजीद की तलावत करते हो, अल्लाह के हुक्म की इताअत करते हो, तो याद रखना अल्लाह की जिक्र से जहन्नम की नजात से, अल्लाह की जिक्र करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम के दर्दनाक अज़ाब से बचाते हैं, और जिक्र से अल्लाह की कुर्ब हासिल होती है, तो उससे अल्लाह राजी होता है। जिक्र करने से अल्लाह राजी होता है, मगर चिल्ला के नहीं, शराबा करके नहीं, लाउड स्पीकरों में नहीं, आप खामोशी से जिक्र करो, अल्लाह के दरबार में रोनादारी करो, अल्लाह से अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाओ। फिर जिक्र कल्बी, जिक्र रूही और जिक्र लिसानी करते रहो। आगे देखें मेरे दोस्तों, वइज़ा राओ तिजारतन लहवन फज़्ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा। और जब आप, अल्लाह ने आगे फरमाया, जब वो लोग देखते हैं तिजारत को, देखते हैं तिजारत को और खेल तमाशे को, तो वो लोग उसी तरफ टूट पड़ते हैं। ये वाकया बताऊंगा, इसके शान नुज़ूल। व तरकू का क़ाइमा, फिर आपको, आप खड़ा हुआ आपको छोड़कर चले जाती हैं। अल्लाह के रसूल को फरमा रहा है कि वइज़ा राओ तिजारतन लहवा, जब आप उनको देखते हैं तिजारत की या खेल तमाशा में ना, तो वो लोग उसकी तरफ तोड़ पड़ते हैं जब वो देखते हैं तिजारत की। फिर उसकी बाद व तरकू का क़ाइमा, फिर आपको खड़ा हुआ छोड़कर चले जाती है। अब मेरे दोस्तों, ये एक शान नुज़ूल है रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदनी जिंदगी में, अल्लाह के रसूल की मदनी जिंदगी में ये आयात नाज़िल हुए कि जुमा जिस वक्त में फर्ज हो चुकी थी, जुमा की नमाज फर्ज हो चुके थे, तो मेरे दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। यहां पर कुछ बातें कुछ इख्तिलाफात है। पहले दौर में जुमा की खुतबा नमाज से पहले, नमाज के बाद हुआ करता था, जैसे ईदैन की नमाज होती है। बाज कहते हैं कि नहीं भाई,
जुमा की खुतबा हमेशा नमाज से पहले ही होते थे। और बात कहते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। बाद मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल की खुतबा मुकम्मल हो चुके थे, हो रहे थे, नमाज के लिए खड़े होने वाले थे। तो उस वक्त एक बहुत बड़े ताजिर है और वो सहाबी भी मेरे दोस्तों के दहिया इब्ने खलीफा कल्बी, दहिया इब्ने खलीफा कल्बी यानी दहिया कल्बी अपने मुल्क के शाम से तिजारत की माल लेकर आया। और उस वक्त में मदीने में माल की कुछ परेशानियां भी थी, क्योंकि मदीने वाले इंतहाई परेशान हालों में थे। तो इसी वजह से मेरे दोस्तों मुफस्सिरीन किराम फरमाते थे कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे और माली तिजारत जब आती है तो उसकी ऐलान के लिए डोल डब्बा बजाया जाता है, ये नकारा वगैरह जो बजाए जाते थे। पहले तो वही जब अजान से पहले, जब अजान के बारे में नाजिल नहीं हुआ अजान उस वक़्त में, ना अल्लाह की रसूल ने उस वक़्त में नमाज के लिए अजान थी, अस्सलातु जामिअतुन कहा के बुलाया करते थे, या नकारा बजाया जाता था कि भाई नमाज की वक्त हो गई। तो आज माली तिजारत की ये रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीनी जिंदगी में ये आयात नाजिल हुआ, वइज़ा राओ तिजारतन नावला वनिफज़्ज़ु इलैहा व तरकूका क़ाइमा। तो दहिया इब्ने खलीफा कल्बी ने अपने मुल्क शाम से माल लेकर आए और मदीना में उस वक़्त में माल की कुछ बहुत परेशानियां थी, यानी अनाज की किल्लत थी उस वक़्त में। और वो माली तिजारत के लिए डोल डब्बे बजाना शुरू कर दिया कि भाई माली तिजारत आ गई है, आप लोग माल खरीदने के लिए आ जाओ। डोल डब्बा बजाना शुरू कर दी। तो मैंने ये बात ही बताया, सुन ले, बातें समझने। बाद में कहा रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा खत्म होने वाले थे। बाद में कहा कि अल्लाह के रसूल नमाज की तैयारी कर रहे थे। जब दरसे कुरान सुने ना, तस्बीह बंद रखा करें और करीब होकर बैठे, क्योंकि अल्लाह की दस्त शफकत होती है इज्तिमा में। जो इज्तिमा से दूर होते हैं उसमें शामिल नहीं होता है, जो इज्तिमा से दूर होती हैं उसी बरकातों में शामिल नहीं होती हैं। वो अल्लाह की दस्त शफकत में शामिल नहीं होती हैं, वो आउट है, उसको नहीं गिनी जाती। ये तो रसूल की हदीस है, अब कोई हदीस के इनकार कर नहीं सकते हैं। तो करीब होकर बैठना, तवज्जो से सुनना, तस्बीह बंद रखना। अब इस वक्त में ये जो बात हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह की कुरान की बात हो रहा है, अल्लाह की कुरान की जिक्र हो रहा है। आप मेरे दोस्तों, ना नमाज, अगर आपकी नमाज कज़ा रह जाए तो आप बाहर से पढ़कर आ जाए, और अगर नफिल पढ़ रहे हैं तो बाहर से 2 रकात पढ़कर आकर दरस कुरान में बैठे। दरस कुरान से बड़े कोई चीज नहीं है, कितना ही आप जिक्र करो, जिक्र दरस कुरान से बड़े नहीं। अब आइए मेरे दोस्तों, अब ये सहाबतुल अजमाइन उस वक्त में बाज ने कहा अल्लाह के रसूल के खुतबा खत्म होने, बाद में कहा नहीं, अल्लाह के रसूल ने खुतबा पढ़ रहे थे, और बाद में कहा नहीं भाई उस वक्त में नमाज जुमा तो फर्ज हो चुके थे, लेकिन उनकी खुतबा की उनको अहमियत नहीं थी। वो ये समझते थे जैसे ईदाइन की नमाज है, ईदाइन की नमाज तो खुतबा नमाज की बात पढ़ी जाती है, तो ईदाइन की खुतबा सुनना क्या है, सुन्नत है। अब नमाजी जुमा की खुतबा वाजिब है, लेकिन इनकी दिलों के अंदर यह अहमियत नहीं थी कि नमाजी जुमा की खुतबा सुनना वाजिब है। तो इसी वजह से अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, और माले तिजारत की आवाज सुनते ही नकारा जैसे बाजे डोल डब्बा, उसी वक्त सारे लोग निकलना शुरू हो गए कि मैं माले तिजारत आ गए और हम अपना खरीदारी कर लें, क्योंकि अनाज की कमी थे। लेकिन अल्लाह के रसूल खुतबा मिंबर पे खड़े थे। व तरकूका क़ाइमा, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आप जिस वक्त में
खड़ा हुआ था। उस वक्त में वो लोग आपको छोड़ के माल तिजारत के पीछे लग गए, डोल डब्बे के पीछे लगे, खेल तमाशा की, यानी डोल बजाते हैं, ये खेल तमाशा में शामिल है। तो माली तिजारत आई, तो तिजारत की वजह से आप तो खुतबा दे रहे थे। सिर्फ हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि सिर्फ और सिर्फ 12 अफराद अल्लाह के रसूल के सामने मस्जिद के अंदर मौजूद थे। अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे थे, बाकी सारे निकल गए। अब बात ये सहाबातुल अजमैन ने नाउजुबिल्लाह बहुत बड़े गलती की है। नहीं, ऐसे नहीं, इनको मालूम ही नहीं थे कोई खुतबा की अहमियत के बारे में, खुतबा की अहमियत के बारे में मालूम ही नहीं थी। क्योंकि सकत में ये थे कि भाई ये हो सकता है नमाजी इदायन की खुतबा जैसे हैं, इनकी अहमियत नहीं था। और दूसरा नंबर अनाज की किल्लत थी मदीने में कि भाई मैं जल्दी हासिल कर लो माल, ना ये बात थे। तो उस सूरत में ये निकल पड़े। अब फिर अल्लाह ने फरमा दी कि जैसे ही वो वैजा रहा तिजारत का कायमा, जैसे वो लोग माली तिजारत को देखे और खेल तमाशा को देखा, लोहलाब यानी डोल डब्बे बजाने शुरू हो गए, वह तरक का कायमा, तो आपको खड़ा हुआ छोड़कर वो लोग वहां निकल पड़े, टूट पड़े। तो उस वक्त भी आयात नाजिल हुआ कि आप खुतबा की अहमियत सुन लो। खुतबा सुनना वाजिब है, बेगार खुतबा की नमाज नहीं होती है। लिहाजा आप खुतबा सुनो। अल्लाह ने फरमाया कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल्लाहि व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए लोगों, तुम लोगों ने माल तिजारत को देखकर या खेल तमाशे को देखकर खुतबा के दौरान अल्लाह के रसूल को खड़ा हुआ छोड़कर तुम लोगों ने माल तिजारत के पीछे डोल डब्बे के पीछे लग गए हो। और अल्लाह की नजदीक ये डोल डब्बा और ये माल तिजारत से ज्यादा बेहतरीन चीज अल्लाह के नजदीक है। फरमाया, कहा कि वो क्या है कि वो अल्लाह की जात वो तुम्हें बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाने वाले हैं। अल्लाह के नजदीक बेहतरीन रिज़्क़ है, फिर तुम लोग ये माली तिजारा डोल डब्बे के पीछे भागकर को निकल पड़े हो। अब इन्हें बता दे, इन्हें समझा दे। तुम मेरे दोस्तों, अब ये फरमाया कि भाई रिज़्क़ का जो तलब करना, उतलुबुर रिज़्क़ा फी ख़बायल अर्दा, कि जमीन की कोने कोने से रिज़्क़ तलाश करो। शायद जमीन के नीचे हो, भाई मना नहीं है, मादानियत अल्लाह ने रखे हैं। अल्लाह की रिज़्क़ तलाश करते रहो, मेहनत करो, मजदूरी करो, सभी चीज तुम्हारे लिए है। मगर कब? फैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह ने फरमा दी। फिर फरमाया वइज़ा रअव तिजारतन लौला वनिफ़ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा, कि माली तिजारत को देखकर, डोल डब्बे और खेल तमाशा को देखकर अब मैं अपने रसूल को खड़े हुए छोड़कर तुम माली तिजारत के पीछे चले गए हो। लोगों सुनो, कुल मा इंदल्लाह, अल्लाह की नजदीक तो इससे बेहतरीन चीज है ये लोहलाब और खेल तमाशा और तिजारत से बेहतरीन चीज अल्लाह के पास है। और अल्लाह की जात है वो बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाने वाले। फिर आगे देखें मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि लैसल गिना अला कसरतुल माल वलाकिन गिना नफ्स, के माल की कसरत से तमंदरी नहीं आते हैं, बल्कि असल गिना नफ्स का है। जो अपने दिल के अंदर गनी है उससे बड़ा गनी कोई नहीं है। जो अपने दिल के अंदर मालदार है उससे बड़ा मालदार कोई नहीं। जो अपने दिल के अंदर बादशाह उससे बड़ा बादशाह कोई नहीं है। हाँ भाई, ये माल बड़ी चीज थोड़ी है। असल बात है दिल की बात, असल बात है नफ्स की बात। मेरे दोस्तों, कितना ही माल तुम्हें मिल जाए फिर भी तुम माल की आरजू करते हो, फिर भी तुम माल की आरजू करते हो। घर के दरवाजों में मेरे दोस्तों अपने लाख सोने का कोने लगा लो, अपने जिस्म में, अपने कमीजों में बटन सोने का कोने लगा लो, हीरे का कोने लगा लो, फिर भी लोगों का दिल नहीं भरता है। तो अल्लाह ने फरमा दिया, अल्लाह के रसूल ने, कि असल माल क्या है? अपना दिल का गिना है। अपने दिल को बड़ा करो, अपने दिल को गिना बनाओ, अपने दिल को मलदार बनाओ। तुम्हारे दिल मलदार होगे तो सब चीजें, लेकिन माल बड़ी चीज नहीं अल्लाह की नजदीक। फरमाया इन्नल्लाह युती अब्दहु मा कुतिबा लहू,
आगे फरमा अल्लाह ताला अपने बंदे को ही कुछ देता है जो उसने उसके लिए लिख दिया है, जो उसने उसके लिए लिख दिया, अल्लाह वही कुछ देता है, इससे इजाफा तुम्हें नहीं मिलेगा। जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे तकदीर में लिखा है वही चीज यकीनन तुम्हें मिलकर रहेगा। दो चीजें है ना भाई, एक रिजिक है, दूसरा मौत है। रिजिक तुम कहीं पर भी जाओ तुम्हें यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएंगे। रिजिक तुम्हारे पीछे होगा, तुम रिजिक के पीछे मत जाओ। अल्लाह ने रिजिक तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिए। जो माल तुम्हें मिलना है वो यकीनन मिलेंगे, जो खाना तुम्हें मिलना है यकीनन मिलेंगे, ना जो पीना है वो यकीनन तुम्हें मिलेंगे। दूसरा क्या है? मौत। ये कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, कि तुम मौत से बचते हो। आजकल मेरे दोस्तों बड़े बड़े मालदार लोग देखते हो ना भाई, हमारे यहाँ वजीर आजम हो या सदर हो या कोई बड़े वजीर हो, कोई बड़े सेनेटर हो, मेरे दोस्तों उनके पास माल भी है और लोगों का लुटा हुआ माल भी है। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह हिदायत नसीब अता फरमाए। वो क्या करते हैं पता है आपको? अपने इलाज के लिए अमेरिका पहुंच रहे, अपने इलाज के लिए बर्तानिया जा रहा है, अपने इलाज के लिए यूरोप कंट्री में जा रहा है, लेकिन सुन लो वो मौत तुम्हें वहां जाकर भी पकड़ लेगा, तुम बच नहीं पाओगे। कितने ही सारे डॉक्टरों का टीम बैठा लो, बर्तानिया की पूरा हॉस्पिटलों की डॉक्टर बैठा लो, यूरोप कंट्री की सारे हॉस्पिटलों की डॉक्टरों को बैठा लो, वो मौत तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हारे वहां जाकर तुम्हें मौत पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से रिजिक, कि तुम कहीं पर भी जाओ मेरे दोस्तों वो रिजिक तुम्हें मिलना ही है। तुम रिजिक के पीछे मत भागो और रिजिक अल्लाह यकीनन तुम्हें अता फरमाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ने दूसरी जगह में वअमुर अहलका बिस्सलाती फरमाया अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वअमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुका। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अपने घर वालों को, अपने हालो याल को नमाज की हुक्म फरमाइए और खुद भी उसके ऊपर साबित कदम रहिए और मुझसे रिज़्क़ की सवाल मत करें कि मैं तो नहनु नरज़ुकुका, हम आपको खुद रिज़्क़ अता फरमाएंगे, हम खुद आपको रिज़्क़ अता फरमाएंगे। अल्लाह खुद रिज़्क़ अता फरमाएगा मेरे दोस्तों, अपने रसूल को बना फरमाया। आगे देखें मेरे दोस्तों कि इन्नर रिज़्क़ लयतलबुल अब्दु कमा यतलबुहुल अजल, बेशक रोजी बंदे को इसी तरह तलाश करती है जिस तरह मौत उसको तलाश करता है, रिज़्क़ भी उसको तलाश करता है। आगे देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि खैरुज़ ज़िक्रि खफ़िय्युन व खैरुर रिज़्क़ि मा यकफ़ी, बेहतर जिक्र वो है जो आहिस्ता आवाज से हो, शोर शराबा नहीं। थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया, लाउड स्पीकर लगाई, फजर की अजान दी और शोर मचाया, नमाज नींद से बेहतर है। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहू, फिर कभी कलमा तैयबा। अरे भाई क्यों लोगों को परेशान करते हो लाउड स्पीकर लगा के? इतनी बड़ी आवाज, इक्को साउंड की आवाज लगा दी, लोग कुरान मजीद तलावत कर रहे अपने घरों में, तस्बीह तहलील कर रहे, वजीफा कर रहे, लोगों को तुम परेशान कर रहे हो। हाँ भाई जरूरत पड़ी कि भाई नमाज की वक्त की ऐलान तो लोगों को होती है, भाई पता है कि भाई नमाज 6:30 बजे या 6:35 पे जमात होंगे यकीनन, तो एक दफा कह दिया तुम्हें याद दहानी करा दो, क्या शराबा, आधा घंटा पौने घंटा शुरू कर दिया तुमने। मेरे दोस्तों तुम्हें तो अजान की इजाजत दी है, अजान देने के बाद खामोशी इख्तियार करो, अपने कुरान मजीद की तलावत करो, जिक्र करो, खामोशी से करो, क्या शराबा करते हो यार लोगों को। फिर दुरूद पढ़ रहा है तेज आवाज से, यार भाई दुरूद से कोई इनकार तो नहीं कर सकते है ना मेरे दोस्तों, तो दुरूद पढ़ो लेकिन आराम से पढ़ो, ऐसे नहीं कि लाउड स्पीकर लगा के शराबा इक्को साउंड में शुरू कर दो। तो अल्लाह ने फरमा दी मेरे दोस्तों, अल्लाह की रसूल ने कि भाई खैरुज़ ज़िक्रि खफ़िय्युन, बेहतरीन जिक्र चुपके से करना, आहिस्ता आहिस्ता करना, व खैरुर रिज़्क़ि मा यकफ़ी, और बेहतर रुज़ी वो है जो किफायत कर जाए, कम से कम जो मिल गया या अल्लाह तेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतामना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह के शुक्र अदा कर ली मेरे दोस्तों, शुक्र अदा कर लिया। तो जो रिज़्क़ तुम्हें मिलने की बात तुम बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अबे भाई क्या पीछे लगो कि जितना भी माल कमाओ, बैंक भर दिया, गाड़ी एक लिया तो बोल रहा है दोस्ता भी ले लो, करोना लिया तो बोल रहा विकी ले लो, विकू ले लिया, बोले ये कुछ कोरोना ले लो, बोले वो भी ले लिया, बोले भाई को ब्लड प्रूफ ले लो कि बम धमाका ना हो, उसमें गोलियां न चले। क्या क्या लालच तुम करते हो अल्लाह की बंदे, कि अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ दी है, खाने का दी है तो खा लो जो अल्लाह ने दी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
آپ اگر چاہیں تو یہ جو ہے پہاڑ جو بتا ہے اس کو میں سونا بنا دوں آپ کے لیے. اللہ کے رسول نے دعا فرمایا اے اللہ مجھے ایک دن ملے میں ایک دن بھوکا رہا ہوں, ایک دن مجھے رزق ملے, ایک دن کھانے کو ملے, ایک دن بھوکا رہا ہوں. جب میں کھاؤں تو تیرے شکر ادا کروں, جب میں بھوکا رہوں تو میں صبر کروں, جب میں بھوکا رہوں تب صبر کروں. میرے دوستو آج کل تو ہمیں رزق پورا ہی نہیں ہوتی ہے. مال کتنے ہی کما لو, کتنا ہی کما لو, پورا دن ایک بندہ بولتا ہے کہ بھائی 10,000 روپے آج اب میرے جیب میں آ گئے, بولے نہیں 10 نہیں 20 آ جائے, ابھی 20 آ گئے, بولے نہیں 30, بولے 30 نہیں بولے 50 آ جائے, بولے بھائی لاکھ پورا ہو جائے, بولے 5 لاکھ بھی پورا ہو جائے, پھر بھی تمہارے آرزو ختم نہیں ہوگی مال کی. تو اللہ نے فرمایا اکتفا کرنا یہ سب سے بہترین چیز ہے. جتنا بھی کمایا تم نے میرے دوستو اسی کے اوپر شکر ادا کرو. ہمارے پاس آتے ہیں لوگ, ارے قاری صاحب یار دکان چلتے چلتی ایک گائے بیچتا تھا نہ, ابھی آدھا میں آ گئی. یہ اللہ نے میرے لیے مقرر کی ہے. سمجھ لے کہ بھائی 2 گائے بیچ لو, میں 6 بیچ لوں, یا 8 جانور بیچ دو, یار دودھ 10 من بیچو, یا مرغی کا کریٹ میں 50 کریٹ بیچوں. ارے بھائی جو بیچا اسی کے اوپر شکر ادا کر. جب شکر کرے گا اللہ تجھے عطا فرمائے گا, جو شکر نہیں کرے گا اللہ تجھ سے وہ بھی چھین لے گا. آئیے میرے دوستوں, وقت ہو گئے میرے دوستوں, آئیے یہ بات ہی بس آخر مختصر میرے دوستوں سورۃ الجمعہ کی آخری آیاتیں چل رہے تھے. تو بات یہ ہے میرے دوستوں, تجارت اور رسول کی سنت ہے. آخری بات میں بتا دوں, ایماندار والی تجارت, ایمانداری سے جو تجارت کرے گا, جھوٹے فراڈ بھی کام, مال میں کمی, ناپ تول میں کمی کرنا, یہ بے ایمانی ہو گئی. امانت دار ایمانداری سے صدق دل سے نہ رسول کی سنت سمجھ کر کوئی بھی تجارت اگر آپ کرتے ہو تو اللہ کی رسول نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین, ان کی حشر نشر نبیوں کی ساتھ ہوگا, والصدیقین اور صدیقوں کی ساتھ ہوں گے, والشہداء یوم القیامہ کل قیامت کی دن شہداء کے ساتھ ان کی حشر نشر ہوگا. افسوس ہے نماز جمعہ کی وقت ہو گیا, ورنہ میں بتاتا. میں جس مسجد میں سب سے پہلی امام تھا تو میری نماز کی ایک مقرر وقت تھے, میں اپنے نمازوں میں پہنچ جاتا, ایک ٹائم بچوں کو پڑھاتا تھا اسی اورنگی ٹاؤن کے اندر. طالب علم کی دور بھی تھے میرے, طالب علم سے فارغ ہوا تو مسجد میں نماز پڑھاتا تھا. فارغ وقت میں نے مالی تجارت کے لیے بی کوالٹی کا کاٹفش, BC کوالٹی کا کام کر رہا ہوتا تھا ایمانداری سے. تو ایک فیکٹری سے جا کے میں نے تولیا کی کاٹفش اٹھایا, ناپ تول میں کمی 12 کلو کم ہو گئی. میں نے جا کے پوچھا دوبارہ کہ بھائی یہ کمی, وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, میں نے سیٹ صاحب کو سنا دیا, نام نہیں بتاؤں گا ورنہ آپ پہچان لیں گے, تولیا کی بہت بڑے کمپنی ہے. تو وہ بول رہا یار قرآن مجید کا آیات پڑھتے ہو یار, یہ مال خریدنے آیا تم کاٹفش خریدنے آیا. میں نے بولا یہی تو بات ہے میرے دوستوں, یہی تو بات ہے, یہ مالی تجارت ہے. نعوذ باللہ, تم نے بولا کہ قرآن مجید کیا آیات, اللہ کی قرآن میں تو تجارت سکھایا. اللہ نے ایک نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجی ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو. ایک بات, دوسری نمبر بات, اس مسجد کے ہمارے جو سیکرٹری تھے ابھی بھی زندہ ہے, خزنچی کا انتقال ہو گئی. دوسرے ساتھی بولے یار یہ مولانا حبیب اللہ تجارت کے اندر لگ گئے نہ, مسجد کی توجہ ختم ہو گئی. مسجد کی توجہ, بھائی مجھے نماز پڑھانے کا ذمہ داری, میں نماز کے اندر پہنچ رہا ہوں تو میں تجارت کر رہا ہوں, کیا حرام کیا, میں نے تجارت کر دی, غلط کیا. بھائی مولوی کے لیے تجارت نہیں ہے. ابھی میں نے ایک بات بولا کہ بھائی اپنے بچوں کو یہ کام سکھا دو. تو بھلے بھائی آپ کی بیٹا عالم بننا ہے, یار عالم بن گیا, عالم علماء کو آپ یہ کاروبار میں لگاؤ گے. میں نے بولا استغفر اللہ حول ولا قوت الا باللہ, کیا تم کیا سمجھ ہو تجارت کرنا سنت ہے میرے دوستوں. اپنے بیٹے کو عالم بناؤ, حافظ بناؤ, قاری بناؤ. میرے دوستوں کتنے ہی بڑے تعلیم یافتہ کو نہ بناؤ, تجارت اس کو سکھاؤ اور بولو ایمانداری سے تجارت کرو. جب ایمانداری سے تجارت کرو گے کل تمہارے حشر نشر انبیاء کرام کی ساتھ ہوگی, صدیقوں کی ساتھ ہوں گے, شہداء کرام کی ساتھ اس کے حشر نشر ہوگا. کتنی بڑی ثواب کی بات ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت طریقے سے کاروبار اور تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.